यशाया हाँ जी 6 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ। यशाया 6 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ। एक तो लेके 8 तक। हालेलुया। पूजिया बादशाह दी मौत दे वरे मैं प्रभु नूं ਉੱਚੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਸ਼ਰਾਫੀਮ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ 6 ਜੇ ਖੰਭ ਸਨ। ਉਹ 2 ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਨਾਲ ਪੈਰ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਨਾਲ ਉੜਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਨ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਅਧਿਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਫੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਵੇਖ, ਇਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਲੋ। प्रभु इस पढ़े हुए वचन दे बरकत देवे। सब जने बैठ जाएंगे। खुदा का नाम मुबारक होवे और प्रभु का धन्यवाद। कोई गल नहीं, प्रभु की ध्यान थोड़े थोड़े अगे अगे और भाई बहन बड़े खुश होए जो उन्होंने इस अज के समय बारे पता लगा, क्योंकि जो पिछले समय के आपां सभावां कीतियां प्रभु की ध्याना, तो आपां कदी किसी दिन कदी किदा उस समय जो निकले और अज खुदा ने अपने लोगों को अपने घर दे विच सद्दा दिता। और सब बड़े खुश होए प्रभु की ध्याना भी असीं अपने प्रभु के घर दे विच जाना है। ये किसी का घर नहीं है, ये यहोवा का घर है। ये किसी मनुख लिए नहीं बनाया गया, ये तुहाडा सब दा है। और हर इंसान इस स्थान के उत्ते आके मुक्ति उधार लै सकता है, मुक्ति लै सकता है और शिफा लै सकता है। सब का हक है। इस करके परमेश्वर का घर हमेशा खुदा का घर हुंदा, किसी मनुखा का घर नहीं हुंदा। जदों साडे उत्ते इस चीज़ का प्रगटावा हो जाए भी असी जिदा भाई होना ने कई ने गवाहियां दित्तियां भी असी रात को ही तैयार हो जाते हैं भी असी प्रभु के घर दे विच सवेरे जाना और उहदी बाणी नूं सुनना है और सुन के असी उहदे उत्ते चलना है। और प्रभु ने कहा है 6 दिन काम कर, 7वें दिन मेरे घर दे विच आ। ये उहदा कानून है। कई बारी लोग सोचते हैं भी असी ज़्यादा प्रभु के घर दे विच जाने हैं, इदा हो जाता नहीं, इदा नहीं है। जो भी परमेश्वर के कानून के विच रवांगे खुदा सानू जरूर बदलूगा, साडियां समझां नूं बदलेगा और साडे सुभाਅ नूं भी बदलेगा। क्योंकि बाणी का जिहड़ा बदलदा की है, बदलदियां हालातां नूं तुहाडीआं प्रार्थना बदलदियां। जिन्ने भी तुहाडे दे हालात आउंदे हन, तुहाडीआं दुआवां उह हालातां नूं बदलदियां आ। लेकिन खुदा का कलाम जिहड़ा है, वचन है, वो तुहाडे जीवन नूं बदलदा है। वो तुहाडे जीवन नूं बदल के रख दिंदा है होली स्पिरिट।
ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਦਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਕਾਸ਼ਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰੇ, ਉਹ ਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਦਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਧੀਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਤਮੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਤਮੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਤਮੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਓਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਖਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਣੀ, ਨਵੇਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੌਲਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਿਕ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਤਮਿਕ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਚਨਹਾਰੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਚਨਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੋੜਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਚਨਹਾਰੇ ਵੱਲ ਮੋੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ
मसीह दे नाल किद्दां जीवन बतीत कीता। एक सरीरक माँ बाप का प्रभाव हुंदा भी मेरे माता पिता बहुत अच्छे सीगे, उन्होंने जीवन दे विच कदी भी इहो जिहे काम नहीं कीते, अच्छा जीवन गुजारिया। लेकिन कई प्रभाव ये रहिंदे आ बंदे दे उत्ते, उन्होंने माँ बाप ने कभी जीवन चंगा काम ही नहीं किया, लेकिन वो बच्चों के उत्ते असर पैदा प्रभाव रहिंदा आ भी साडे माँ बाप ने उन्हें एक न एक दिन तुहानूं जरूर कहूगा भी पिता जी तुसीं किहड़ा कोई चंगा काम किया है। अपनी माँ नूं कहूगा तुसीं किहड़े कोई मम्मी कोई जीवन च चंगा काम किया, क्योंकि उन्होंने प्रभाव ही गलत है बच्चों के उत्ते। नबी ने कहा ਜਦੋਂ भी कोई ਤੁਹਾਡਾ प्रभाव ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ अच्छा प्रभाव होवे, ताकि वो प्रभाव हमेशा याद रखन बच्चे और अपनी आने वाली नस्ल नूं भी दसन भी ये तेरे दादा जी हैं, ये आए हैं, इन्हां दा जीवन जिहड़ा आ यीशु मसीह नाल बिल्कुल सैट सीगा और खुदा नाल सही मार्ग दे उत्ते तेरे चलदे हैं। हालेलुया। जे धरती तो तुसीं चले भी जाओ पर तुहाडा प्रभाव जिहड़ा आ वो सही रहना चाहिए है। ये सब कुछ प्रभाव है। हालेलुया। खुदा दा नाम मुबारक होवे। तुसीं देखते हो कई बारी इंसान देखने वाली चीज़ों का प्रभाव लैंदे आ, चीज़ों नूं देखदे आ उन्हां दा प्रभाव लैंदे आ, कईयां दा शरीर का प्रभाव लैंदे आ, कोई कपड़े का लैंदा, कोई किसी का प्रभाव लैंदा आ, कोई किद्दां दा, कोई वालां दा प्रभाव लैंदा है, कोई ये सब प्रभाव एक दूजे तो असीं चीज़ां लै लैंदे आ क्योंकि दिखदियां लै लैंदे आ। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहुंदा जे कोई प्रभाव लो किसी का तो चंगी गल दा लो, मसीह का प्रभाव लेना चाहिए, क्योंकि जिन्नियां भी आपां चीज़ां देखते हाँ इन्हां दा कोई वजूद ही नहीं है, और जिन्हां दा कोई वजूद नहीं है उहदा प्रभाव लैके की करूँगा, कोई ਉਹਦਾ प्रभाव कोई फायदा नहीं उस चीज़ों का, क्योंकि जिहड़ी चीज़ां नाश हो जानियां उन्हां दा कोई प्रभाव लैण दा फायदा नहीं है। तो प्रभाव उस चीज़ का लिया जाए जिहड़ा तुहानूं फायदा आ, वो है परमेश्वर का वचन और प्रकाशन। हालेलुया। खुदा दा नाम मुबारक होवे। इस करके मैं थोड़ी जी तुहाडे अगे कहानी स्टार्ट कर लगा ताकि सानू इस गल्लां दी समझ लगे। जिहड़ा यशाया सीगा वो उहदी याद आ बचपन च दोने जने कट्ठे वड्डे हुए सी, यशाया नबी और उरिया राजा जिहड़ा, और उरिया दा जिहड़ा राजा सीगा उहदा डैडी जिहड़ा सीगा वो एक बहुत वधिया इंसान सीगा, एक अच्छा चरवाहा सी। उरिया राजा भी एक अच्छा चरवाहा सी, वधिया बनया, बाद चो राजा बनया और वधिया बंदा सीगा उहदा डैडी। लेकिन कुछ समय तो बाद उहदा आत्मिक पतन हो गया सी, लेकिन उहदा जिहड़ा प्रभाव सीगा अपने पुत्र दे सीगा उरिया दे उत्ते, और यशाया नबी और वो दोने इकट्ठे वड्डे हुए सी, दोने दोस्त सीगे, वधदे गए, और उन्हें उरिया ने वो काम चंगे कीते जिहड़े यहोवा नूं पसंद सीगे, और उन्हें उदां ही उन्होंने थोड़े समय दे विच ही उन्होंने राज दिता गया, उन्होंने राज उहदे हत्थ विच आ गया, उन्होंने परमेश्वर ने वधाया। जिद्दां जिद्दां वो चंगे काम करता गया खुदा उन्होंने वधाउंदा गया, जिद्दां जिद्दां परमेश्वर की बाणी दे नाल जो कुछ उन्हें सारे टुंड मुंड जो भी सीगे खत्म कर दिते, और खुदा खुश होया उन्होंने अगे अगे वधाउंदा गया। उसकी आवाज़ जिहड़ी सीगी दूर दूर तक फैल गई उरिया राजे की, और अपने वो राजे दे इन्ना क प्रभाव होया यशाया नबी इन्ना क प्रभावित अपने राजे तो होया, वो यहोवा नूं भुलदा जा रहा सी यशाया नबी। और खुदा का काम करने का तरीका है जिहड़ा नबी है उन्हें नबी ही रहना है।
ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਸੂਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। क्यों? क्योंकि नबी और राजक और सेवक बनाए नहीं जाते, ना अपने आप बनते हैं, ये सब मां के गर्भ चो पैदा होते हैं। हालेलुया। हुण है तो नबी सीगा, लेकिन अजे वो काम च नहीं सी आ रहा, खुदा की पकड़ के उत्ते नहीं सी आई, ओदा खुदा की रेंज च नहीं सी आ रहा। समा आया, समय दे नाल प्रभु काम करता है। कोई समा आ गया, समय दे नाल परमेश्वर काम जीवन च करता है। हालेलुया। जदों दा समा आया वो इन्ना कुछ वध गया, उसके अंदर हंकार पैदा हो गया। जदों उसके अंदर हंकार पैदा होया, उन्हें सोचा भी मैं ਉਹਦਾ ਕੰਮ भी मैं कर सकता, जाजकाई का काम मैं जो ਜਿਹੜਾ काम मैं, क्योंकि मैं मेरे च पावर है, खुदा ने मेरे ते रहम किया। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ इस भुलेखे च हुंदा भी परमेश्वर ने मेरे ते रहम किया होया, लेकिन मैं जो मर्जी कर सकदा, उत्थे ही ਉਹਦਾ आत्मिक पतन शुरू हो जाता। जिस स्थिति दे विच खुदा उन्होंने ਵਧਾ ਰਿਹਾ आ, ਇਹਦਾ मतलब वो भाई वो भैन सही जा रही है, उस स्थिति के सही जा रही है, क्योंकि उस स्थिति के उन्होंने प्रभु परमेश्वर बरकत दे रहा, ਵਧਾ ਰਿਹਾ है, आत्मा च भी ਵਧਾ ਰਿਹਾ, धरती से भी ਵਧਾ ਰਿਹਾ है। खुदा उन्होंने बरकत दे रहा है। प्रभु का नाम मुबारक होवे। कई बारी असी की सोचते हाँ भी असी वो भी काम कर सकते हाँ, असी वो भी काम कर सकते हाँ, इदा नहीं हुंदा। मैं उरीजा की तां तुहाडे मूहरे उदाहरण रखी थोड़ी जी, जिहड़े बाइबल नूं जानते हैं उन्हां बारे समझाना चाहुंदा। अच्छे बंदे दा, अच्छे पिता दा प्रभाव अपने बच्चों ते और यीशु मसीह का प्रभाव अपनी प्रजा ते है, क्योंकि साडा अच्छा पिता आ, स्वर्गी पिता आ। और जदों असी उहदे प्रभाव थल्ले रवांगे स्वर्गी पिता दे, ते कोई भी आँच जिहड़ी है तुहानूं नहीं ला सकदी वचन दी, क्योंकि वचन दी विच हुण तुसीं देख एक चीज़ देखनी है। जदों नबी सीगा, मूसा सीगा, ध्यान नाल सुनना पओ। जदों मूसा बवा लैके गया, इसराइल दे विच उहने बवा पाईयां, खुदा ने उन्होंने टांगा दिता। ध्यान नाल सुनना, जिथे वो टांगा रखता सीगा बवा बन जांदियां सी, जो बोलता सी टांगे नाल वो सब कुछ हो जाता सी। सराल बन गई, सप बनया, उन्होंने सप बनाया, वो भी खा गया। लेकिन उन्हें फरौन दा, खुदा ने फरौन के मन नूं कठोर करता रहा। लेकिन मैं तुहाडे अगे एक चीज़ रखन लगा, सारी दुनिया देखती सी भी मूसा बवा कितना लैके आ रहा है, और जिन्ना चिकर तुहाडे ते खुले ना तुहानूं पता नहीं लगना मूसा बवा कितना लैके आ रहा। पढ़िया तुसीं सब ने मूसा ने बवा लियांदियां, लेकिन कितना लैके आ रहा सीगा, वो जिथे टांगा लाउंदा सी वो बवा जिहड़ियां मूसा टांगा सिट टांगे नूं ला, उहदे बवा आउणियां शुरू हो जांदी, जो प्रभु बोलदा सी उदां ही हुंदा सी। लेकिन सारी दुनिया उन्होंने देखती सी, किनू देखती सी? उस टांगे नूं, उस टांगे नूं देखती सी। फरौन भी देखता सीगा, सारी दुनिया जिन्ने भी इसराइल भी देखता सीगा, और मिस्र भी देखता सीगा, लेकिन किसी का दिमाग काम नहीं किया भी असी उस टांगे नूं लै लीए। जे वो टांगे नूं लै लैंदे मूसा कुछ नहीं सी कर सकता। समझ, मूसा कुछ नहीं सी कर सकता, क्योंकि वो टांगा जिहड़ा सीगा वो न्याय नूं लैके आ रहा सीगा।
ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਢਾਂਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਫਨਾਏ ਜਾਣਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਰੀਆ ਇੰਨਾ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਨੀਵਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਤੇ ਭੜਕਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਗੇ, ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਗਲਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉੱਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਓਗੇ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸੇ ਨਤਾਰ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਗਿਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ,
दूसरा इतिहास पूरी 26 है मेरे ख्याल, दूसरा इतिहास और 26 सब भाई भैन कट लो। 26 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, 16 ਤੋਂ ਪੜ ਲਓ, 16 ਤੋਂ ਠੀਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਕਿਦੋਂ ਬੰਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਕਿਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਿਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪੌਲਸ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੰਦੇਹਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਤਾ। जो तुसी बाइबल पढ़ोगे, पौलुस ने ज्ञान सारा ना किंदी दे उत्ते टंगता। अज लोकी की करते हैं? ज्ञान नूं लेंदे हैं। मोहरा, कलीसिया योग, दानियल दे 70 साते, इजबल, तमाम तरह के ज्ञान लोगों नूं दसदे हैं। लेकिन मैं तुहानूं दसां, मोहरा दी किताब कलीसिया युगां दी किताबां सानू समझाया गया आ, वो युगां दे बारे सानू समझाया गया आ, इस युग विच की होया, इस युग च की होया, इस युग दा एलिया कौन है, इस युग दा आई की है। इतिहास सानू जागरूक करदा भी ये मिशन कित्थों आई, किद्दां बनी, किद्दां किद्दां आया, किद्दां किद्दां युग आया, अगला युग किहड़ा है, क्योंकि जानकारी है ये तुहाडे एक जानकारी है जिहड़ी संदेशवाहक ने सानू जगाया दसी। लेकिन इहदे नाल लोकी की हो गए, हंकारी हो गए, हंकार च आ गए। लेकिन जो तुसी मोहरा की किताब नूं पढ़दे आ, उस स्टार्टिंग तो उन्हें लिखा खुदा जिहड़ा परमेश्वर जिहड़ा आ वो सधारणता दे विच छुप जाता है। हालेलुया। हुण मैं तुहानूं जिहड़ी गल तुहाडे मूहरे रखण लगा उहनूं ध्यान नाल सुनो। हुण तुसीं सोचदे हो कई बारी होता भी प्रभाव किहदा होना, जिहड़ा जिहने चोला पाया होवे। प्रभाव किहदा होना चाहिए? जिहड़ा वधिया एक ज्ञानी होवे। सब गलत है। तुसी जिन्ने मर्जी ज्ञान वाली गल्लां कर लो, ਉਹਦਾ प्रभाव कभी काम नहीं, एक ना एक दिन ਉਹਦਾ प्रभाव फेल होएगा। पर ਜਿਹੜਾ प्रभाव होली स्पिरिट ਦਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ जीवन च कभी खत्म नहीं होएगा। होली स्पिरिट ਦਾ प्रभाव कभी नहीं खत्म ਹੁੰਦਾ, क्योंकि वो प्रभाव यीशु मसीह ਦਾ प्रभाव है। हालेलुया। वो कभी खत्म नहीं ਹੁੰਦਾ, लेकिन किताबां पढ़ के ज्ञान खत्म हो जाता है। इस करके लोगों के उरी जा बकर हाल होया। ज्ञान उधर उन्हें इदा ही किया, सब कुछ हो गया, लेकिन अज भी वही हाल रह गया। लेकिन अज की होया, उन्हें वो काम किया जिहड़ा तुहाडे सामने रखदा। एक महान राजा होया उरी जा, और जशाया इहदे प्रभाव तो, इहदियां गल्लां तो बहुत, क्योंकि एक दा दोस्त सीगा उहदा, एक उहदे ते उहदा एक प्रभाव सीगा। प्रभाव होना चाहिए आ, एक अच्छे सेवक का प्रभाव होवे, एक अच्छे संदेशवाहक का प्रभाव होवे। हालेलुया। हुण 1965 च साडे भाई चले गए, लेकिन इन्हां दा प्रभाव साडे उत्ते आ। इन्हां ने प्रभाव साडे उत्ते आके पाया नहीं है भी असीं तुहाडे उत्ते प्रभाव पाता। नहीं नहीं नहीं, इदा नहीं होया। ये खुदा ने इदा जोड़िया सीगा, यीशु मसीह ने जोड़िया सीगा। सानू उस चीज की तलाश सीगी, सच्चाई की है।
सच की है, उधार किद्दां पा सकते हाँ, मुक्ति किद्दां पा सकते हाँ, परमेश्वर की भगती असीं सच्चे मन नाल किद्दां कर सकते हाँ। हालेलुया। इन्हां ने आके सानूं सिखाया, दस्सिया भी जे तुसीं इदां चलोगे तो तुहाडा उधार हो जाएगा। होएगा नहीं, हो जाएगा। एक दा कहते ना होऊगा, होऊगा वाला काम नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह दे वचन जड़े आमीन जहान हो गया। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो गई, खुदा का धन्यवाद हो गया। लेकिन लोगों ने उस चीज़ को गलत लिया। जो असीं ज्ञान के नाल लोगों को ये चीज़ां दसनियां शुरू कीतियां, थोड़े समय लिए चलिया, लेकिन लंबा समा नहीं कट लिया। क्योंकि जो पौलुस की गल पढ़ो ग्रंथियां च, उन्हें कहा मैं तुहाडे कोल ज्ञान नाल नहीं, परमेश्वर की सामर्थ नाल आया है, ओदी हजूरी चो आया है, उन्हें मैनू भेजिया है, मेरा ओदा गठबंधन है, मेरे ते मसीह का प्रभाव है, पवित्र आत्मा का प्रभाव है, और उन्हें लोगों को हिला के रख दिता। आमीन। मैं पौलुस की गल कर रहा। कई लोग सोचते हैं भी मलाकी 4 का कोई ना ही, भाई ब्रैनम का कोई बाइबल च ना ही नहीं है। अज उन्होंने भी मैं चांदन पाना चाहना थोड़ा जा, ताकि वो गल समझ सकन। जो यूहन्ना आया, जो मलाकी 3 दी विच, यशायाह दी पुस्तक दे विच, उन्हें कहा ओदी आमद दे पहली आमद दे ओदे अगे अगे एलिया जिहड़ा आ ਉਹਦਾ संदेश चलेगा। ये यूहन्ना का संदेश ना नहीं लिखिया। 400 साल बीत गया, याद रखियो गल नूं। अज 400 साल बीत गया, 450 साल बीत गया, खुदा ने किसी ने गल नहीं की, क्योंकि वो समा आ गया वचन पूरा करन दा। वो सीधा ही जो दूत आया, दूत जकरिया के कोल दूत आया। जकरिया ने कहा, उन्हें कहा तेरे घर हुण पुत्र होगा, एलिजाबेथ के घर पुत्र होएगा तेरे घर, ओदा नाम तू यूहन्ना रखी। किदों गया? 450 साल बाद। लेकिन लिखत जी यूहन्ना दी पहले हो चुकी सी। ਇਹਦਾ प्रगटावा कितना होया? जो असीं बाइबल के दूजे पासे देखते हैं, लूका की पुस्तक देखते हैं। इसे तरह ही कई लिखतां मलाकी दे विच भाई बारे दसियां, फिर आदे बारे प्रकाश की पोथी 10 दे विच 7 1 दी 7 तक पढ़ो, उहदे विच दसिया। ये तमाम लिखता आ, लेकिन ना लोग कहते ना तो लिखे नहीं, ना तो यूहन्ना दा भी नहीं लिखिया सी, लेकिन उहदे कम्मां तो पता लगा भी ये एलिया आ। आमीन। और काम दसणगे भी कौन है। मूसा ने काम दसे भी मूसा पैगंबर है, मूसा जरा एक नबी है। हर बंदे ने काम दसदे है भी वो काम की कर रहा है, कि उन्हें नबी वाला काम किया नहीं। लेकिन लोगों ने बिना रेवलेशन तो लोगों नहीं समझ आई गल। लेकिन एक समा आया जिन्ना उत्ते खुदा ने प्रगट करना सी कर दिता। धन्यवाद प्रभु का। कई लोगों की समझ है अपनी अपनी बंदे की, किते वो प्रगट कर दिंदा। जे तुसीं मरकुस की पुस्तक पढ़ो, उहदे विच लिखिया है, जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया सी पिछले समय, खुदा ने लोगों को कईयां नूं भोंदू कीता ताकि उन्होंने गल्लां दी समझ ना लगे। फिर उन्हें भी इस मरकुस की पुस्तक च कहा भी मैं नहीं चाहता इन्हां उत्ते कोई प्रगटावा होवे, ये बच जाण। मसीह ही नहीं चाहता भी ये लोग बचन। जो उन्हें इसराइल के प्रचार किया, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि लिखता है परमेश्वर दी। मैं लिखता का नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहता हाँ खुदा के काम करने का तरीके दस रहा, ताकि अपन बात पहचान लगे। वो इन्ना क वध गया, उन्होंने कोई सूझदा नहीं सी, और अंदर हंकार आ गया, तकड़ा हो गया। तकड़ा बंदा किदों हुंदा? ज्ञान दे नाल। ज्ञान ना तकड़ा हुंदा आ, परमेश्वर की सामर्थ भी नाल चाहिदी आ, ताकि वो ज्ञान नूं संभाल के रखे। खुदा की सामर्थ चाहिए जिहड़ी साडी जुबान नूं हर चीज़ नूं पकड़ के रखे।
कोई पावर चाहिए जी सानू चीज़ नूं फड़ के रखे। कई लोग बिना समझ तो बिना गल समझ तो बिना बोलते हैं, लेकिन प्रभु का धन्नवाद करते हैं जिहड़े खुदा दे आत्मा पाए लोग होंदे आ, उन्हां दा आत्मा उन्हां दे बस विच हुंदा है। हालेलुया। कई बारी गल बंदा बोल दिंदा, उन्हें पता ही नहीं लगता की बोल रहा, क्योंकि हंकार जिहड़ा आ ये कदी जीवन च नहीं होना चाहिए इंसान दे। और जिहदे मसीह बंदे दे अंदर जिहड़े यहोवा नूं मनण वाले लोग हैं, ध्यान नाल सुनो, मैं बाइबल सिद्ध कर लगा, उन्होंने अंदर अगर उन्होंने अंदर एक चीज़ आ गई भी असी बहुत सानू पता है या साडे अंदर बहुत चीज़ां आ, वो समझ ला वो अंदर कोड लग जाना है। और जो अंदर कोड लग गया, अगे मत्थे ते लगता सीगा, हुण अंदर लगना आ। लोकां नूं दुनिया नूं जो खुदा ने तुहानूं बख्शिया आ वो लोकां नूं बचाउण दे लई आ, मारन लई नहीं आ, ताकि खुदा दे लोग उस बाड़े नूं उस सच्चाई नूं जान सकन जिन्हां दे उत्ते पर्दा पिया होया आ। तलवार हमेशा अपनी रक्षा नूं हुंदी आ और दूजे नूं बचाउण दे लई हुंदी आ, किसे नूं मारन दे लई नहीं हुंदी। हालेलुया। रक्षा वास्ते और दूजे नूं बचाउण दे लई। हालेलुया। जे मान लो तुहानूं समझ आ गई है परमेश्वर ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, यीशु मसीह नूं इकट्ठा करना है। यीशु मसीह है, इनू इकट्ठा करना है। ज्ञान सवेर तो लेके शाम तक नेट से देखी जो मतलब ज्ञान तेन नहीं मिलना, जिन्ने मर्जी सुनी जाओ प्रचार, तुसी लोगों के कसम कोई चीज तुहाडे मतलब की नहीं मिलनी, क्योंकि तुसी असली तलवारबाज हो, तुसी असली चीज खाते हो, और असली चीज खाने लई असली स्थान के उत्ते ही जाना पैना है, जिथे मर्जी कोई भज लवे। हालेलुया। ज्ञान वाला बंदा होली स्पिरिट द्वारा नहीं बोल सकता। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक होवे। पर शर्त है वो उस प्रभाव के थले अपने आप को अधीन करे। जो प्रभाव थले अधीन हो गया, खुदा ने पकड़ उन्होंने फड़ लेना खुदा ने। हालेलुया। कुछ गल्लां हैं जिहड़ियां मैं तुहाडे मोहरे रखणियां चाहुंदा। जो मूसा अपने प्रजा नूं कढ के लैके आया, एक भी बंदा नहीं मरिया, एक कबूतर नहीं मरिया, एक कुकड़ी नहीं मरी, एक बल्द नहीं मरिया। किन्ने लोग जानते गल्लां? जदों उस लहू के थल्लों निकले, उस लहू थल्लों निकले, उस संदेश थल्लों निकले, उदों बवाही, उदों मरे। नहीं तो बजुर्ग सीगे चलते गए विचों विचे, चलो तो समाप्ति हल जाने ही सीगे। लेकिन जिन्ने लोग उस आवाज़ के थले रहे, उस प्रभाव के थले रहे, उस पहाड़ के थले रहे, सारे लहू थले टके रहे, एक भी जानवर नहीं मरिया। लेकिन फिरौन दे सारे रथ समुद्र च चले गए, एक भी बंदा नहीं उन्होंने बचया। लहू च इन्नी पावर है। और जिन्ने लोग अज ध्यान नाल सुनो सच्चे संदेश थले रहणगे, उन्होंने परिवारां दा, उन्हों दा अपना एक वाल भी पिंगा नहीं होएगा। ये वो संदेश है मूसा वाला। अरे जिन्ना उत्ते कल का प्रगटावा होया उन्हों की गल कर। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक होवे। ये वो चीज़ां हैं जिहड़ियां मैं तुहाडे मूहरे रख रहा। बाड़ा मोटा बीमार हो जाता बंदा, लेकिन किन्नियां मर्जी बाबा नबी ने कहा जो उन्होंने फरमाया मैं वो तुहाडे अगे रख रहा।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾੜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਲਹੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਹੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਢਕਣਾ ਆ, ਲਹੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਮਰੀ ਆ, ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਮਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਖਤਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਫਾ ਬਣਾ ਲੇ, ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਕਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਾਵਧਾਨੀ 'ਚ ਰਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਵਾਈਆਂ ਆ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਹੂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨੇ ਪਕੜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਾਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਣਗੇ? ਇਸ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਈਡ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਮਨ ਜੁੱਟ ਇੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੰਗੋ ਹੀ ਨਾ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਮੰਗੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪੂਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਆਮੇਨ।
इसे लिए मैं तुहानूं दस्सिया खुदा का शुक्र करना चाहिए भी सानू उन्हें इस समय दे विच अपने लहू थले ढकिया है। खुदा का नाम मुबारक होवे। प्रभु ने तुहाडे कोई भी तुहाडे हिलन नहीं दिता इन्ने चिर दे विच भी। लेकिन जो असीं कोई गलतियां करते हैं उन्हें क्या फिर साडे उत्ते परमेश्वर कई बार सानू छिटी भी मारदा ताकि वो सुधरे। उन्हें क्या रोटी तोड़न और संगति करन च लगे रहो। प्रेरितां पुस्तक लिखिया जिन्हें बपतिस्मा लिया उन्होंने रसूलों की संगति की और रोटी तोड़ी। उन्हें कहा संगति करन और रोटी तोड़न च हमेशा प्रार्थनावां च लगे रहो। तुहाडे हर एक का फायदा है उस प्रभाव थले रहो जिहड़ा मसीह का प्रभाव है। हालेलुया। मैं थोड़ा जिहा जब सिर्फ एक अज प्लेटफॉर्म एक नींह रखी है प्रभाव की ताकि आपां नूं उस गल की पूरी तरह ना समझ लग सके। उरिया ने सब को हंकार गया सब कुछ किया लेकिन उन्हें अपनी स्थिति को संभाल के नहीं रखा। अपनी स्थिति को उन्हें संभाल के नहीं रखा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद होवे हर एक मेरी भैन हर एक परमेश्वर का बच्चा और बेटी बेटे अपनी अपनी स्थिति को अपनी अपनी उस चीज़ को संभाल के सब ने रखना है क्योंकि समा होना भयंकर है। तुम बार बार कहोगे भाई बार बार नहीं मैं कहना तुहाडे सामने सब कुछ हो रहा है वो समा नज़दीक आ रहा है। दोबारा समा नज़दीक आ रहा है। दिन घट रहे हैं दबाव वध रहा है। तंगी की रोटी जड़ी है आ रही है। हर चीज़ महंगी हो रही है महंगाई हो रही है और डॉक्टर का बिजनेस जड़ी ड्रग्स का काम वध रहा है दवाइयां का काम वध रहा है। जिन्हें मैं तो 5 साल 6 साल पहला प्रचार किए ये वध रहा है। हर एक दी सिस्टम दे विच आमदनी जो भी सी वो सारी घट रही है। हर एक चीज़ घट रही है। तुसीं देख लो आने वाले चिन्ह बारे मैं तुहानूं दस रहा है पर मुबारक हैं लोग जिहड़े मसीह के प्रभाव थले रहणगे होली स्पिरिट के प्रभाव थले रहणगे। हालेलुया। तुहाडी ड्यूटी नहीं है ओदी ड्यूटी है। मैं सिर्फ तुहानूं एक ही गल कही है संगति करनी नहीं छड्डनी। किन्ने लोगों गल दी अज याद रहूगा संगति करनी नहीं छड्डनी। ये हालातों दे विच चाहे तुहानूं सवेरे 5 बजे क्यों ना बुलाना पवे इस टाइम वो हालात आ रहे हैं। मैनू भावें 3 संगतियां करनियां पैण जो मर्जी करना पवे मैं तैयार हाँ। कि तुसी भी तैयार हो। हालेलुया। रोटी तोड़न और संगति करनी और प्रार्थना करनी कभी नहीं छड्डनी। वायरस तुहाडे घर के अंदर बढ़ के दिखावे। खुदा का फरमान है आमीन। प्रभु का धन्यवाद। नाल मैं तुहानूं ओहदे दस रहा तुहाडा बचाव भी दस रहा। हालेलुया। संगति नाल बचाव है क्योंकि जो तुसीं संगति करनी है होली स्पिरिट का प्रभाव तुहाडे ते रहना है। होली स्पिरिट का भरे हुए बंदियां का प्रभाव तुहाडे ते रहना है। शरीरक प्रभाव नहीं लेना। क्या रखो जिन्हें शरीरक प्रभाव लिया खत्म हो जाना उन्हें क्योंकि वो भी खत्म नाल वो भी खत्म दोनों खत्म हो जाएंगे। अज समय आ अपने आप को बचाने का अपने परिवार को बचाने का संगति करनी नहीं छड्डनी। भावें कुछ भी हो जाए उन्होंने क्या असीं संगति में जाना है। क्यों मैं कह रहा तुहानूं क्योंकि समा नज़दीक है। तुसीं संगति करके जा रहे हो। सवेरे भैन ने कहना भाई कित्थे गया मेरा पति कित्थे गया और सोई बल गया ही पानी लैण। उन्हें कहना मेरा बच्चा कित्थे गया और जाके थाने लिखाओ थाने। हालेलुया। क्योंकि चुंबक ने उतरना है उन्हें अपने बच्चे को खिंचना है। हुण प्रचार नहीं हो रहा हुण तुहानूं तैयारियां लैके जा रहे हो। हालेलुया।
ताकि वो चुंबक आ रही है हम नेड़े, क्योंकि हालात देख रहे हैं। बता नबी ने कहा जो चेंज नूं देखो, इसराइल की घड़ी नूं देखो, तैयार हो जाओ, संगति नहीं छड्डनी। हालेलुया। जिद्दां मर्जी करो, हालेलुया, संगति नहीं छड्डनी। आमीन। प्रभु ने कहा संगति में बने रहना है, क्योंकि इन्हें तुहानूं बचा के रखना पाइप। हालेलुया। देखो किन्ने लोगों ने हाथ खड़े होंगे हैं जो पुकारते हैं, वैरी को अग लगती है, शैतान को अग लगती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोगों का प्रभाव होंदा है, वैरी भजदा है उतों। हालेलुया। कोई शैतान का आत्मा नहीं रह सकता। पर गल ये भी हौली हौली जो समझ आ जाए, सब समझ आनी है। हुण मेरा कहने का मतलब, हुण प्रचार बहुत सुने असीं अज तक, चलो नव्या नूं तो नहीं पता, पुराने लोगों ने प्रचार बहुत सुन लिए, सब कुछ सुन लिया, मोहरां बारे सुन लिया, है ना, सब कुछ सुन लिया। हुण समा आ अगे नूं जाण दा। जिन्हें संगति छड्डी वो अपना जिम्मेवार आप है, क्योंकि रहाब नूं इदां ही कहा सीगा, जिहड़ा कमरे तो बाहर रहा वो अपना जिम्मेवार वो आप है। उन्हें कहा असी उहदे लहू तो बरी हाँ, जिहड़ा कमरे तो बाहर रहा, क्योंकि उस समय दे विच एक संगति की लोड़ सीगी। जदों तुहानूं वो खुराक मिली जानी है, वो चीज़ तुहाडे अंदर बनी रहनी है। संगति बहुत जरूरी है, सभा दे विच आउणा बहुत जरूरी है। कई लोग कहते कोई गल नहीं, अज संगति किहड़ी हुंदी, नहीं नहीं नहीं, यही तो प्रमाण है। जो तुसीं प्रेरित आत्मा शास्त्र पढ़ते हो, कहना शैतान भरमाउंदा किद्दां बंदे नूं, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤੀ ਤੋੜਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋੜਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋੜਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ 4G 5G ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਲਵਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। जो यसु मसीह वरताउंदा है, सब ने छक के जानी है, कोई भुखा नहीं जाता इथों। हालेलुया। क्योंकि जो खुदा ने मच्छी रोटी वरताई, कोई भुखा नहीं जान दिता, बचे रहे, टोकरे भर गए। हालेलुया। खुदा किसी को निराश नहीं करता, सब को तृप्त करके भेजता है। हालेलुया। जिद्दां भी किसी को लोड़ हुंदी, खुदा उन्हें तृप्त करता है। हालेलुया। प्रभाव थले रहना, मसीह का प्रभाव होना चाहिए, हॉली स्पिरिट का प्रभाव होना चाहिए। किन्ने लोगों को पता हॉली स्पिरिट कित्थे है? आमीन। एक मैं नाल मैं संदेश भी दसदा रहना, नहीं मैं संदेशों के नाम नहीं दसदा। एक संदेश है दरवाजे के अंदर दरवाजा, एक संदेश है। उस संदेश वाक ने क्या लोगों को समझा रहे हैं, दस रही दुनिया को। पौलुस भी नबी सीगा, मैं पौलुस नूं नहीं देखा, किसी ने नहीं आपां नूं देखा, इन्हां चों किसी नूं नहीं देखा सी। लेकिन मैं इन्हां दा प्रचार नहीं करता भी इन्हां नूं तुसीं मन्नो, मैं ये नहीं कह रहा। जिहड़ी बाणी लिखी गई है ये हॉली स्पिरिट द्वारा है। इन्हां ने सानू जागरूक की। कोई बंदा सानू मान लो बिजली बनाई किसी ने, जे किसी ने लाइट बनाई है, वो लाइट वाले का नाम अज तक भी है, इस बंदे ने लाइट बनाई है। इदां ही है ना। जे किसी ने डैम बनाया, वो डैम वाले का नाम हैगा आ। असी लाइट का आनंद सारी पब्लिक सारी दुनिया लै रही है। परमाणु की लाइट है, जिन्होंने बनाया उन्होंने नाम आ,
ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਆਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਰਾਗਰੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀਹ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੰਜੇ ਠੋਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਨਿਰਧਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। और कोई सोच नहीं सकता भी यहोवा इन्ने गरीब परिवार च आया होगा। मसीह दोनों ही गरीब सीगे, कारागरी करते सी ते रोटी खाते सी, मेहनत करते, हथी मेहनत करते सी, हथी मेहनत करके रोटी खाते सी। और मसीह वो घर दे विच आया। किन्ने भाई बहन समझ रहे? मसीह कोई ये नहीं है भी कहे रिच मैन के घर आऊगा। गलती ना करो कभी भी। बाइबल से पत्रियां च लिखा परमेश्वर गरीबां दे लई आया है, गरीबां दा मसीहा आया, क्योंकि आप ही वो गरीब घर च गया। क्यों गया? क्योंकि लोग उन्हें पहचान नहीं ना, वो कौन है पता ही नहीं। हालेलुया। किसी को पता ही नहीं वो कौन है। दुनिया अज वर्ल्ड के परमेश्वर का नाम है, पर असली प्रगटावा नहीं है। कोई कहता खुदा का पुत्र है, समझ आई, लेकिन असली प्रगटावा ये है वो लौड़ है। हालेलुया। कई उन्होंने कहते वो पकंबर है, कई उन्होंने कहते नबी है, वो हर चीज़ बनया। जिन्हें अपने शरीर को बना लिया, तुहानू की लोड़ सी उन्होंने बनाउण दी? मैं तुहानू उधर पिछले साल, तुहानू की लोड़ बंदे बनाउण दी? उन्होंने जानवर ही चंगे सीगे। जब जानवर बना ले, बांदर बना ले, शेर हाथी सब बना ले, सब कुछ बना लिया, उन्होंने लोड़ ही नहीं सी बंदा बनाउण दी। बंदा उन्हें तां बनाया ताकि बंदा पाप करे, बंदा पापी बने, वो बख्शनहार बने। हालेलुया। तां तुहानू बनाया उन्हें। हुण मैं अगे जाना थोड़ा, तुहानू तां दसना। तुसी गुनाह करो वो माफ़ करे, तुसी गुनाहकारी करो, व्यभिचार करो, गंदगी करो, खुदा तुहानू माफ़ करे। खुदा कंजरियां कोल आया, मैं तुहानू दस्सिया नहीं पिछे, वैश्यां कोल आया, जिन्होंने कोई समाज च पुछदा नहीं, खुदा उन्होंने को कहा है यहोवा किहो जिहा देखो। चुंगी लैन वाले को, ब्याजियां को। हालेलुया। हुण कौन उन्हें पहचान सकता है? उहदा काम ही उल्टा। ज्ञानी बंदा नहीं उन्हें पहचान सकता। जिन्ना मर्जी ज्ञान इकट्ठा कर लो, तुसी यहोवा नूं नहीं फड़ सकते। मेरा तजर्बा है, यहोवा नूं कोई नहीं फड़ सकता। उन्हें गल करके निकल जाना। यीशु मसीह नूं कोई फड़ नहीं। वो कहती जे मैं पल्ले नूं छूआं, उन्हें पता ही यीशु मसीह ने मेरे हथ तो आना नहीं है। वो लहू वाली औरत ने, उन्हें पता सी भी यीशु मसीह इन्नी तेज स्पीड नाल तुरदा, मेरे हथ कित्थों आ जाना। उन्हें दुनिया उहदे उत्ते डिगदी है। उन्हें अपने मन च विचार बनाया भी जे मैं प्रभु के पल्ले नूं छू लवां तो मैं चंगी हो जावांगी। वो इन्नी स्पीड नाल तुरदा ही। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। बहुत सारी गल। आमीन। उसी गरीब निर्धन घर च, हमेशा एक निर्धन गरीब घर च पैदा आया, कोई उन्हें पहचान ही ना सके, और इदा का परमेश्वर बनया। कई लोग सोचते होने ये बंदा जोड़ा यीशु मसीह नूं परमेश्वर कहता, लोगों को गल हजम नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ों की समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है। मैं भी कहता सी, मैं क्या सी
ਵੀ ਵਾਹਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਔਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। और ये बाइबल ही एक सच्चा पवित्र ग्रंथ है। हालेलुया। और बड़े बड़े लोगों ने जो स्टडी की उन्होंने पता लगा, पढ़ो फिर ही पता लगू। हालेलुया। कोई भी बंदा परमेश्वर का खुलासा नहीं कर सकता ਉਹਦੀ ਰਹਿਮ ਤੋਂ बिना, और बंदे ਨੂੰ कोई भी परमेश्वर नहीं कहता। लेकिन खुदा दे जिन्हां ते खुदा प्रगट हुंदा आ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ परमेश्वर ਹੋਇਆ। लेकिन मैं ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। आदम कुछ नहीं करता, हवा कुछ नहीं किया, लेकिन वो योजना अनुसार सारा काम होया। खुदा की योजना तो बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, सृष्टि नहीं हिल सकती सृष्टि का। ये कितना हो गया फिर? क्योंकि उन्हें होन दिता, उन्हें ये चीज़ां होन दिता ताकि उसका प्रभाव जड़ा आ पब्लिक ते दुनिया ते पवे। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक होवे। हालेलुया। ताकि असी गुनाह करिए, वो साडा रचनहारा साडे ते अपने पटावा करे, सानू माफ़ करे, साडे गुनाहां नू क्षमा करे, और असी उन्होंने अपना उद्धारकर्ता कबूल करिए। हालेलुया। आओ थोड़ा जिहा अगे पढ़ते भाई जी, पढ़ो हम। हाँ जी 18 तो पढ़ो। अते उन्होंने उजिया, हाँ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, हे ਉਜੀਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਧੂਪ ਜਗਾਉਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਜਾਚਕਾਂ ਅਰਥਾਤ ਹਰੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧੂਪ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। तेरा काम नहीं है धूप दिखाना, तू तो राजा आ, तू तो राजा है, तेरा काम नहीं है। ये तो जिन्हों खुदा ने बख्शिया गया आ वो काम कर सकता है। ये तेरा काम नहीं, तेरा काम है राज करना, तेरा काम है इस राज नूं संभाल के रखना। जो जाजका ने उन्होंने कहा, पर वो अंदर कमांड आ चुका सी। जो बंदे ने अंदर वो चीज़ आ जाती है, फिर वो बंदा किसी नूं नहीं कोई समझता, क्योंकि वो अंदर वो चीज़ आ चुकी है। नबी ने कई, देखो जो नबी होंगे कई तरह बोलते हैं, वो स्थिति नूं बोलते, देख के बोलते हैं, वो ऑडियंस नूं देख के बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रचार जोड़ा आ दुनिया विच, इतिहास दुनिया विच जाना हुंदा। हर बंदा उन्होंने रीस नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने खुदा ने बनाया ही उदा का हुंदा। उन्होंने वास्ते उन्होंने रखिया हुंदा ताकि तेरा पैगाम जोड़ा अगे तक जाना आ। उन्होंने खुदा ने उन्होंने बनाया ही इदा का हुंदा। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक होवे। इसी तरह मैं तुहानूं दस रहा, ज्ञान जिहड़ा आ इंसान दे अंदर घमंड लैके आउंदा आ। कई ऐसिया चीज़ां हन जिहड़ियां साडे अंदर घमंड लैके आ जांदियां। असी सही चलते हैं, परमेश्वर की भगती वधिया तरह ना करते हुंदे आ, लेकिन साडे अंदर एक दिन कोई भी चीज़ का घमंड आ जाता। किसी भी चीज़ का घमंड ला लो, जिदा मान लो मेरा काम सैट हो गया, मैं कोई कर लिया, मेरे अंदर वो घमंड आ गया है ना, मैं किया नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता उसकी आज्ञा तो बिना, उसकी दया तो बिना, जिन्ना चक्कर कोई बंद ना दे, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मेहनत सारी दुनिया करती है, सारे चीज़ उस चीज़ तक थोड़ी पहुँच जाते हैं, वो बेचारे मेहनत करके सदा रोटी ही खाते हैं। लेकिन जिन्ना यहोवा जी मदद करता है, उन्होंने थले धरती ते भी उपर भी बरकत दिंदा, जमीन ते आसमान की बरकत दिंदा। लेकिन गल तो यह भी समझ होनी चाहिए है, हंकार कभी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। जे हंकार करना, जे तुसी अणख रखनी है तो इस चीज़ की रखो भी असी परमेश्वर को जानते हैं, बस
मेरे ते मेरे परिवार ते ओदी कृपा हुई है, ओदा अनुग्रह होया है, और मैं ते मेरा परिवार ओदे प्रभाव दे थल्ले रहना चाहते हैं, वचन दे हेठ रहना चाहते हैं, उस आवाज दे थल्ले रहना चाहते हैं जिहड़ी आवाज सानू बचाउंदी है, जिस आवाज ने एलिया दे राही 7000 लोकां नू बचाया। हालेलुया, खुदा दा नाम होगा। खुदा नू हंकारी बंदा कदी पसंद नहीं, उन्होंने हमेशा दीन पसंद हैं। सिर चक के गल करने वाले खुदा नू पसंद नहीं है, सिर नीवा करके तुरने वाले खुदा नू पसंद है। मैं तुहानू पहले दसिया साडा काम है जो खुदा ने अपने नौकर नू खड़ा किया इसलिए ताकि उहदे लोकां नू रचनहार वल लाया जाए, ताकि लोकां नू रचनहारे वल लाया जाए, उन्होंने अंदर ये भर दिता जाए इन्हें तुहानू रचिया आ, ये तुहाडी मां आ, ये तुहाडा बाप है, और तुसी हमेशा इसके प्रभाव थले रहना। आमीन, वचन के प्रभाव थले रहना, हॉली स्पिरिट के प्रभाव थले रहना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। नाल मैं तुहानू दसदा भी रहना ताकि आपां समझ भी लगे गल्लां दी। मैं तुहानू दस्सिया सी मनुख कोई भी पवित्र नहीं हुंदा, क्योंकि मां के तुखम तो जमया कोई पवित्र नहीं है, लेकिन हॉली स्पिरिट पवित्र है। हालेलुया, प्रभु का नाम। हॉली स्पिरिट पवित्र हुंदा जिहड़ा अपने संतां दे अंदर रहिंदा है, जिहड़ा अपने बंदे दे अंदर रहिंदा है, अपनी बेटियां दे अंदर रहिंदा, अपनी दुल्हन दे अंदर रहिंदा है, ब्राइड दे अंदर रहिंदा है। किन्ने लोग समझ रहे गल नूं? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद होवे। ओ मुबारक है, हॉली स्पिरिट मुबारक है, ओ पवित्र है। हुण मैं अगे वो पासे जाना, ध्यान नाल सुनना। हाँ जी, पढ़ो अगे भाई जी, इहनूं पता अगे खत्म करिए। नहीं सगो जांच करता पवित्र भवन तो बाहर जा, क्यों जो तै बेईमानी की है। तैं कहंदे जायका ने ना लिहाज नहीं किया भी राजा आ होगा, राजा जायक नहीं कहना लिहाज कर दे, होगा राजा। वो कहते चल बाहर चल, कहते तू बेईमानी की आ, तू बेईमान है, तू विश्वासघात किया, बेईमान है। हाँ जी अगे। अते यहोवा परमेश्वर वालों यह तेरी वड्याई का कारण नहीं होवेगा। हाँ, तेरी एक कहना तू गलत काम किया या तेरी वड्याई खत्म, तेरा सिस्टम और खत्म हो गया, स्टॉप हो गया। बस इंसान अपने गलतियां के कारण अपना सिस्टम खुद खराब कर लेता। जो मैं तेरे अगे रखनी चाहना, बड़े ध्यान ना सुनो। किसी का कुछ नहीं गया, जायका का कुछ नहीं गया, किसी का कुछ नहीं गया। जिहड़ा खुदा ने उन्हें रुतबा बख्शिया सी वो खत्म हो गया, जिहड़ा प्रभु ने उन्होंने बरकत दी सी वो खत्म हो गई, क्योंकि कई लोग उस चीज़ को संभाल नहीं सकते। मान लो एक बंदा आ जिन्हें कभी 1 लाख रुपया ना देखा होवे, ओरी लाटरी निकल आवे करोड़ रुपए की, उन्होंने जो करोड़ रुपया दिता जाए, मैं भाई नाराज ना हसदा ही, मैं कहा की करूँगा। समझ आई? मान लो कि वो 10 करोड़ रुपया को आए, उन्हें की करना, गल समझा रहा। वो यहोवा दे नाल नहीं चिमड़ेगा, वो करोड़ों के नाल चिमड़ेगा। लेकिन गरीब बंदा यहोवा की उपासना दिल तो करेगा, क्योंकि सुलेमान ने यही फरमाया है, कहना मैनू इन्ना अमीर ना करी भी मैं तेनू भुल जावा, इन्ना गरीब ना करी भी मैं तेरे नाम नू दाग लावा, चोर बन। उन्हें भी कोई गल्लां सोच के गई हैं। हालेलुया,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ। ਉਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਚਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਮਾਰੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ, ਬਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਬਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਦ ਉਜੀਆ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧੂਫ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਧੂਫਦਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਸ਼ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ, ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਜਕ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ। ਕੋੜੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਕੋੜ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਕਰ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋੜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋੜ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਣਾ ਸੀ ਯਸ਼ਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਸ਼ਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਰੁਕ ਜਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2:6 ਦੀ 2 ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਉਰੀਯਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਕਲ 'ਚ ਗਿਆ ਯਸ਼ਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਫੀਮ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਫੀਮ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਸ਼ਰਾਫੀਮਾਂ 'ਚ ਲਹੂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਾਫੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਰੇਕ ਦੇ 6 ਖੰਭ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹ 2 ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦਾ ਸੀ। 2 ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, 2 ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 2 ਨਾਲ ਪੈਰ ਢੱਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ 2 ਨਾਲ ਉੜਦੇ ਸੀ। 2 ਨਾਲ ਉੜਦੇ ਸੀ, 2 ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਖੁਦਾ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ। ਆਹਾ ਉਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਟੂਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਭਵਨ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਧੂਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਅਧੀ ਰਾਤ ਦੇਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਬਲੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਫੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਾਫੀਮਾਂ ਚੋਂ
दूत नहीं, शराफीमा चो एक मेरे कोल आया। हाँ जी ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋੜਾ ਸੀ जी, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। जग बेटी तो ने चिमटे दे नाल वो कोला चक्या। हाँ जी ਤਾਂ ਉਸ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਵੇਖ ਇਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੂਰ ਹੋਈ। कोला गरम कोला क्यों लाया? गरम कोला की सीगा? हॉली स्पिरिट, अग, अग साफ कर दी है, अग ने साफ किया। हालेलुया। हाँ अगे ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਢਕਿਆ ਗਿਆ। तेरा जो पाप सीगा उन्हें क्या टकिया गया, क्योंकि तू खुदा नू देख लिया है। हालेलुया। कईयां नूं असीं गल कही है, कईयां नूं हजम नहीं हुंदी। वो कहंदे रब नूं कौन देख सकदा? क्यों नहीं देख सकदा? जे जानू ने बनाया आ ते उहदे दूत नूं तुसीं देख सकदे हो। हालेलुया। पर अंदर होना चाहिए भी मैं अपने परमेश्वर नूं देखना जिन्हें मैनूं बनाया है। हाँ जी अगे बढ़ो पा थोड़ा समा। हाँ जी ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਲਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ। कहना मैं प्रभु की आवाज़ नूं सुनिया, उन्हें कहा भी कौन बेली हुण ये जिहड़ी आवाज़ है जो तू देख रहा आ ये लोकां नूं दसनी आ, कौन कहता जाएगा? यशायाह ने कहा प्रभु मैं जावांगा, और गया। 66 किताबां लिखियां, इनू आरे नाल एक एक पीस इहदा कीता गया। हालेलुया। लेकिन पहला अपनी दोस्ती के आनंद विच सीगा, पर जदों खुदा दा प्रभाव इहदे ते पिया, 66 किताबां लिखियां बाइबल दियां। हालेलुया। जो परमेश्वर हौली स्पिरिट का प्रभाव पैदा, इंसान का जीवन बदल जाता है। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक होवे। आओ असीं खड़े हो जाने सारे जने। प्रभु का धन्यवाद होवे। सब भाई खड़े हो जान, भैन खड़ियां हो जान। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। हौली स्पिरिट तेरी बड़ाई करते हैं खुदावन। अज जिन्हां लोगों ने तेरी बाणी नूं सुनिया है प्रभु उन्हां ते किरपा करनी। जो बीमार तेरी घर दे विच आए हैं खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम च एक एक नूं चंगा करना प्रभु किरपा करनी है। जो दुखी लाचार अज तेरे घर च आ चुके हैं, तेरी हजूरी च आए हैं, महाबली दूत तू एक एक नूं स्पर्श करना, एक एक दे सारियां वैरी दी शक्तियां उन्होंने सब दे जिस्मां चो खुदावन यीशु दे नाम सब समाप्त हो जाए। हर एक पत्थरी खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम खत्म हो जाए। हर एक दिन सोरी यीशु मसीह तेरे नाम खत्म हो जाए। खुदावन सब दे उत्ते तेरी कृपा होवे। सारा कोड़, सारे चमड़ी रोग खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम सब समाप्त हो जाए। आज तो बाद कोई भी तकलीफ शरीर तेरा रवे, सारी दुर्दाई खुदावन यीशु के नाम समाप्त हो जाए। प्रभु हर कदी दर्द खुदावन यीशु तेरे नाम खत्म हो जाए। हर कदे अंदर जो लश्कर है, जो घोड़ी ने किसी ने फड़िया है खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम हर एक लश्कर का गंदा आत्मा उखड़ जावे। हर कदे शरीर दियां मांदगियां यीशु मसीह तेरे नाम से जातियां रहन। हौली स्पिरिट तू एक स्पर्श कर। खुदा दा आत्मा स्पर्श कर रहा है, उहदे आत्मा ने आज फड़ लिया है। हर एक मांदगी दा आत्मा आज सब दे शरीरां चों समाप्ति हो जावे यीशु मसीह दे नाम। हर एक रोगी नरोया हो जावे। हर एक वैरी दी शक्ति यीशु मसीह तेरे नाम समाप्त हो जावे। तू कृपा कर प्रभु, अनुग्रह कर, तंदुरुस्ती दे प्रभु। कोई भी शरीर का मांदा ना रहे। हर एक मांदगी प्रभु कृपा कर। आज सब भाई भैन यीशु मसीह तेरे नाम इस शैतान तो आजाद होके जान। सब दे उत्ते तेरा अनुग्रह होवे। कोई भी प्रभु वैरी दे जुकर च ना रवे। शैतान यीशु मसीह के नाम हुक्म देना इसे समय सारे शरीरों को छड़ दे, उखड़ जा। एक शरीर जो खड़ जा। खुदावन तेरी कृपा चोना
कोई भी प्रभु मांदगी का शरीर च रवे, एक एक प्रभु विश्वास करने वाले लिए आज सब कुछ संभव है। तो विश्वास करना, अज प्रभु ने मेरे ते रहम किया है, मैनू चंगा कर दिता है, मेरिया दर्दां नू खत्म कर दिता है, मेरी रीढ़ की हड्डी नू चंगा कर दिता है, मेरी लत्तां नू चंगा कर दिता है, मेरे हर एक हड्डी नू चंगा कर दिता है, मेरी अखां नू प्रभु ने छूलिया है, मेरी अखां नू चंगा कर दिता है, हर एक रोगां दा मैनू छुटकारा कर दिता है, हर एक वायरस दा मैनू छुटकारा कर दिता है। खुदावंद तेरा धन्नवाद करदा, तेरी बड़ाई होवे। एक एक नू हील कर प्रभु, एक एक दे उत्ते किरपा कर, एक एक नू हील कर प्रभु, एक एक ते रहम करो प्रभु यीशु मसीह, तेरी दया होवे, तेरा रहम होवे प्रभु, तू अनुग्रह कर, रहम कर खुदावंद, तेरे नाम दा झंडा उच्चा होवे प्रभु, तू किरपा हाथ रखना, सब दे उत्ते रहम करना, एक एक दे उत्ते दया करनी प्रभु, तेरी बड़ाई होवे खुदावन। कोई भी मांदगा न लवे, सब दियां रसोलियां, सब दे प्रभु, सब दियां पत्थरियां खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम च सब बाहर आ जान, हर एक रसोली यीशु मसीह तेरे नाम च खत्म हो जाए, हर एक अतरंग यीशु मसीह तेरे नाम च खत्म हो जाए, हर एक गूंगापन यीशु मसीह तेरे नाम च चलता रहे, हर एक दी मिर्गी खुदावन यीशु तेरे नाम खत्म हो जाए, हर एक दे फेफड़ियां की समस्या प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से चलती रहे, तू किरपा कर, रहम कर प्रभु, तेरी बड़ाई होगी खुदावन, तेरा धन्नवाद करना, तेरा नाम का झंडा उच्चा हो, तू सब के उत्ते रहम किया, धन्नवाद, सब तू नरोया किया, सब अपने अपने हथ खड़े करके देखो, सारे शरीर खुदा टच कर रहा है, सब शरीर अपने हिला के देखो, खुदावन तेन नरोया कर दिता है, एक जीवन को बदल दिता है प्रभु, हालेलुया। सब के हिरदे सब के विच विश्वास करने सब कुछ संभव है, खुदा ने मैंने चंगा कर दिता है, खुदा ने अज मेरे ते रहम किया है, अज तो बाद मेरी बदी दूर हुई है, धन्यवाद खुदावन, तेरियां बहुत बड़ियां गवाहियां होन प्रभु, तेरियां गवाहियां हो खुदावन, सब लोग तेरे गवाह बन जान, तेरी बड़ाई होगी, सच्ची तौबा करन लोग खुदा तेरे वाल मुड़न खुदावन, ताकि उन्होंने तेन देख रहा प्रभु, अज खुदावन तेरे वचन सुनिया है, क्योंकि यहोवा दा वचन ही सब लोगों को नरोया करता है, तेरा वचन है प्रभु जिहड़ा सब चंगा करता है, सब दियां बदियां नूं ढकदा है, धन्नवाद कर, तू किरपा कर, सब दे उत्ते दया कर, सब जने हाथ खड़ा करके पुकारांगे प्रभु नूं, सब दे लई दया मंगांगे खुदावन, सब दे उत्ते दया कर, सब हाथ खड़ के पुकारांगे यहोवा, एक एक नूं स्पर्श कर, एक एक भैन नूं स्पर्श कर, एक एक भाई नूं स्पर्श कर, एक एक बच्चे नूं स्पर्श कर, सब बांधियां खत्म कर दे यहोवा, एक एक नूं स्पर्श कर, धन्नवाद हो, तेरी बड़ाई होगी, तेरे नाम का चंगा उच्चा हो, खुदावन तेरा धन्नवाद, एक एक भाई बहन नूं चंगा कर, यीशु मसीह दे नाम सब दियां मांगियां खत्म, हर एक लश्कर यीशु मसीह दे नाम खत्म हो जाए, हर त्रुटि खत्म हो जाए, हर को वायरस यीशु मसीह दे नाम से जाता रहे, तेरा धन्नवाद कर, तेरी बड़ाई होगी, तू नरोया कर प्रभु, एक एक भाई बहन नरोया कर, धन्नवाद प्रभु, स्पर्श कर खुदा, जीवन को बदल दे प्रभु, धन्नवाद कर दे, साडियां हड्डियां ने रोया किया, धन्नवाद, साडियां हड्डियां ने रोया किया, धन्नवाद, सारियां दर्दां यीशु के नाम खत्म हो गई, हर एक पत्थरी यीशु के नाम खत्म होगी, हर एक उलझन यीशु के नाम खत्म होगी, हर एक प्रभु वैरी आत्मा यीशु के नाम खत्म होया, सब के सिर रोया किया, धन्नवाद खुदावंद, तेरा शुक्र है, तेरा नाम की महिमा हो, खुदा यीशु के नाम च